Hello children, good morning to all. So children, in our today's class, we will learn about Wi-Fi and Wimax. And before starting with this, we will go there for revision tour, what we covered in our previous class. So for this, here our class begin. So children, in our previous class, we discussed that how we can connect to internet. So for connecting to internet, first thing we required is the ISP. What is actually ISP? ISP is Internet Service Provider, that company that provides us this service. Few major ISP in India are, for example, BSNL, Reliance, and Jio, and Idea, and so many are there. Now, when we are connecting these internet, so there are three main ways. फर्स्ट वन इज डायल अप से आप कर सकते हो, या फिर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हो, और इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन यूज़ वायरलेस और वाईफाई कनेक्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. If we discuss about these types of internet connection, look that complete internet connection this types is divided into two parts. ठीक है. अगर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, then we can connect it either with the help of wire or with the help of wire without wire. ठीक है, means wireless system. If we are using wire, so that medium through which internet is or data is transferring, that medium is guided medium. Guided, why guided here? Because if I am using any wire, तो data is transferring through that wire only. ठीक है, उसको एक path, dedicated path है, वो उसी को follow करता हुआ जा रहा है. So that wire is a guided media. Dial-up connection, DSL and cable internet, in all three we are using wire here for connection. ठीक है. तो what type of connection it is? Wired connection. And which media it is? Guided media. Means जहाँ पे medium होता है उसको guide करते हैं. नेक्स्ट इज वायरलेस मीडियम. वायरलेस मीडियम होता है वहाँ पे डेट वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक गाइडेंस. ठीक है. तो अनगाइडेड मीडिया इट इज. अनगाइडेड मीडिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल that in Wi-Fi we are not having this dedicated path that it is up to the that data कि वो किस पाथ से फॉलो करते आ रहा है. ठीक है. एटमॉस्फेयर सेटेलाइट कनेक्शन, जब हम सेटेलाइट से डेटा ले रहे हैं तो वो तो whatever data is coming from satellite, it depend on that data कि वो कौन से डायरेक्ट पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है. ठीक है. वो सीधा डायरेक्ट भी आ सकता है, थोड़ा टर्न होके भी आ सकता है. सो दिस वन इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ वायरलेस मीडियम. एंड विच मीडिया इट यूज? अनगाइडेड मीडियम. ठीक है. सो नाउ this type of internet connection here, first one is dial-up connection. Dial-up connection is a wired, and dial-up connection it uses guided media. Second thing is, in this what happened, we are using same landline phone, and with that landline phone we are placing it there in the CPU, and we are dialing one number from that phone. Now this phone can act as a modem, and we are using that phone as for connecting to internet. ठीक है. Disadvantages, speed is slow, and nowadays we are not using this one, but here and this one can act means it can perform only one function at a time. Either you can attend call or it can act as a modem. ठीक है. Next is DSL. DSL stands for digital subscriber line. As compared to dial-up, its speed is more or faster than dial-up connection, and it allows us that at a time we can use that telephone or that landline for both for telephone and for internet access. ठीक है. and DSL is also wired connection. सेम वही टेलीफोन लाइन होती है, उसी को कनेक्ट करते हैं. बट इफ़ वी आर कनेक्टेड, वी आर प्रेफर दिस DSL कनेक्शन, दैट फोन कैन एक्ट एज बोथ. फ़ोन भी अटेंड कर सकते हैं, एंड विद दिस इट कैन एक्ट एज मॉडम ऑल्सो. ओके. थर्ड वन इज केबल इंटरनेट. केबल इंटरनेट इट ऑल्सो अ वायर्ड कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दैट इट इज़ मोर फास्टर दैन दिस डायल-अप कनेक्शन एंड दिस DSL. एंड केबल इंटरनेट का बेस्ट एग्जाम्पल इज योर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. ठीक है. थर्ड वन इज नेक्स्ट इज वायरलेस. देखो वायरलेस में फर्स्ट इज सेटेलाइट कनेक्शन. चिल्ड्रन, इन yesterday वन बॉय और वन चाइल्ड हैज आस्क्ड कि मैम सेटेलाइट कनेक्शन एंड 3G 4G सिस्टम आर सेम. ठीक है. द डिफरेंस इज कि फर्स्ट सेटेलाइट कनेक्शन होता है दैट वी आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सेटेलाइट, दैट आर डिश टीवी. ठीक है. डिश टीवी जो अपना प्लेस होता है दैट विल टेक सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द सेटेलाइट.
But in 3G 4G system, first thing is these are the standards that we are using to connect to the internet on the mobile devices. ठीक है, 3G 4G तो होते हैं, ये स्पीड मेंटेन करते हैं. अब ऐसे तो नेट तो होता है that every net will come from satellite only, but in D2H or in satellite connection we are taking that net or that signal directly, we are catching from that satellite. But in 3G 4G system we are taking data from our ISP. अब जो ISP है वो शायद हो सकता है सैटेलाइट से, क्योंकि सारा कनेक्शन सैटेलाइट से ही आता है. तो ISP is taking data from the satellite, but we are taking our data from that ISP. So 3G 4G system, these are the standards that we are using for, we can say that, for measuring the speed. Okay, so satellite connection it uses unguided media for such as satellite for transmitting and receiving the signals. 3G 4G it shows you the speed, ठीक है, or we can say used to connect to our internet, ठीक है, our mobile device with the internet. Okay, and in our mobile device already inbuilt antennas are there, and with the help of that antenna we are able to for sending and receiving signals. ठीक है. Next one is Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. ठीक है, one important topic. Children, in exam direct note will there from Wi-Fi and Wimax. So it is important one. Wi-Fi stands for wireless fidelity, and it allows us our mobile or our computers to connect to the internet through wireless medium. Okay, that we are not using wire. And the elements of this Wi-Fi is access point, Wi-Fi card, safeguard, and Wi-Fi hotspot. And this Wi-Fi, it uses radio waves. And first one is access point. Access point क्या होता है? That our system, ठीक है, suppose in my phone, ठीक है, इन माई फ़ोन आई वॉन्ट टू यूज़ इंटरनेट, तो मेरे फ़ोन का जो एक्सेस पॉइंट है वो ऑन होना चाहिए, डैट वी कैन से मोबाइल डेटा. अगर मेरा एक्सेस पॉइंट ऑन नहीं होगा, डैट आई एम अनेबल टू कनेक्ट विद माई ISP. ठीक है, अगर मेरा ISP से कनेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स आई एम अनेबल टू कनेक्ट माई फ़ोन विद इंटरनेट. ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट होता है इज एक्ट एज अ बेस स्टेशन इन द एंटायर. ठीक है, और वी कैन से इट इज़ अ वायरलेस लैन, और ठीक है, वायरलेस लैन और बेस स्टेशन डेट कनेक्ट वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट. ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि अगर मुझे मेरे फ़ोन में नेट यूज़ करना है तो मेरा एक्सेस पॉइंट ऑन होना चाहिए, एंड विद दिस एक्सेस पॉइंट ओनली आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई ISP. ओके, next one is Wi-Fi card. This one is Wi-Fi card, or in general term we can say that LAN card. ठीक है, children, in laptop तो it is easy for us to connect with this wireless medium. ठीक है, we can easily connect with Wi-Fi, but if in desktop I want to connect my that desktop PC with that wireless network, for that we require this Wi-Fi card. ओके, और ये जो वाईफाई कार्ड होता है जब हम इसको CPU में प्लेस करते हैं, देन ओनली वी आर एबल टू यूज़ दैट वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, इन द डेस्कटॉप. सो फॉर सेकेंड वन इज दिस वाईफाई कार्ड, और वी कैन से LAN कार्ड. नेक्स्ट वन इज सेफगार्ड्स. सेफगार्ड्स होते हैं दैट फायरवॉल एंड एंटीवायरस. फायरवॉल एंड एंटीवायरस दैट दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सिस्टम फ्रॉम अनइनवाइटेड यूज़र्स. कोई हमारे इंटरनेट को अगर यूज़ करना चाहता है, ठीक है, और दैट पर्सन इज़ नॉट हैविंग ऑथराइज पासवर्ड, तो दिस फायरवॉल एंड एंटीवायरस दे आर प्रोटेक्टिंग आवर सिस्टम फ्रॉम दिस अनऑथेंटिकेटेड यूज़र्स. ठीक है, वाईफाई कार्ड होता है, ये सबके में होता है. ठीक है, किसी में इनबिल्ट होता है, किसी में हम एक्सटर्नली प्लेस करते हैं, जैसे डेस्कटॉप में प्लेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज वाईफाई हॉटस्पॉट. चिल्ड्रन, अभी हमने पढ़ा था एक्सेस पॉइंट. ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है? बाय विच आई एम कनेक्टिंग माई फोन विद माई ISP. एंड टू मोर टर्म्स आर देयर, वन इज वाईफाई एंड वन इज वाईफाई हॉटस्पॉट. ठीक है, अब वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? डेट फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज माई फोन एंड आई एम हैविंग नेट पैक, एंड यू वॉन्ट टू कनेक्ट योर फोन और यू वॉन्ट टू यूज दिस नेट पैक इन योर फोन ऑल्सो. ठीक है, अगर मेरा एक्सेस पॉइंट ऑन होगा, मेरा मोबाइल डेटा ऑन होगा, देन मेरा फ़ोन होगा वो मेरे नेट से कनेक्ट हो गया. सेकेंड वन इज़ हॉटस्पॉट.
हॉटस्पॉट इन माय फ़ोन, ठीक है, अगर मेरा फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन होगा देन यू आर एबल टू कनेक्ट योर फ़ोन विद माय फ़ोन। हॉटस्पॉट भी मेरे ही फ़ोन में जब तक ऑन होगा तभी आप अपने फ़ोन को मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट वाईफाई। वाईफाई, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, दैट इन योर फ़ोन, अगर आप अपना वाईफाई ऑन करोगे तभी आप मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है, डेट वन इज़ द फिजिकल लोकेशन वी कैन से, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, यू आर ओपनिंग योर वाईफाई एंड यू आर कनेक्टिंग योर फोन विद दैट वाईफाई हॉटस्पॉट, और वी कैन से दैट कि वो लोकेशन जहाँ से हमें नेट मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, दिस लाइब्रेरीज, ठीक है, दे आर जहाँ पे भी आपको इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, डेट वन इज़ योर वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क, how this network works. So that's for this Wi-Fi hotspot is created by installing an access point to an internet connection. सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरी है, अगर हमें ये वाईफाई नेटवर्क से वर्क करवाना है, घर में वाईफाई ऑन करवाना है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट इज़ कि जो भी डिवाइस है वो सबसे पहले किससे कनेक्ट होगी, एक्सेस पॉइंट से। अगर एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट नहीं होगी तो इट मीन्स नेट ही नहीं आएगा, आईएसपी से नेट नहीं आएगा तो फिर कनेक्शन किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज इंस्टॉल एन एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट टू दिस इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, टू एन इंटरनेट कनेक्शन। द एक्सेस पॉइंट एक्ट एज अ बेस स्टेशन, बेस ही है, ठीक है। अगर एक्सेस पॉइंट नहीं होगा तो नो वन इज एबल टू कनेक्ट विद दिस नेट। व्हेन वाईफाई इनेबल डिवाइस फाइंड अ हॉटस्पॉट, ठीक है, अगर आपके फ़ोन का वाईफाई ऑन होगा देन योर वाईफाई इज़ एबल टू फाइंड द हॉटस्पॉट, कौन सा हॉटस्पॉट है, ठीक है, हॉटस्पॉट, एंड कनेक्ट टू दैट नेटवर्क वायरलेसली, ठीक है। एंड जो एक बार अगर मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया है तो एट अ टाइम दैट हॉटस्पॉट इज़ एबल टू कनेक्ट 30 यूज़र्स, ठीक है। पूरी क्लास में अगर सपोज 30 मोबाइल्स आर देयर एंड माई हॉटस्पॉट इज आई ओपन, तो 30 स्टूडेंट्स आर एट अ टाइम आर एबल टू कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर वाईफाई, समझ में आया, दैट पर्टिकुलर नेट कनेक्शन। एंड द रेंज ऑफ दिस वाईफाई इज 100 to 300 feet, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 100 to 300 feet at a time 30 students or 30 mobiles are allowed to that connect with that phone, और दिस वन इज वन वायरलेस लैन नेटवर्क, ठीक है, समझ में आ गया वाईफाई। नेक्स्ट वन इज वाईमैक्स। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। चिल्ड्रेन, ये फुल फॉर्म जो है, दिस फुल फॉर्म इज द इम्पॉर्टेंट वन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाईमैक्स, एक्चुअल में देखा जाए तो वाईमैक्स इज ऑल्सो वर्किंग सेम, ठीक है, वाईफाई जैसा ही होता है और यहाँ पे भी हम कनेक्शन ही करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फर्स्ट डिफरेंस इज कि आपका जो वाईफाई होता है इट विल वर्क ऑन लैन, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मुझे लोकली अपने एरिया में ये नेटवर्क क्रिएट करना है तो देयर वी आर यूजिंग वाईफाई। वाईमैक्स होता है इट डिपेंड और वी कैन से इट वर्क ऑन मैन, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर सपोज जैसे मैंने वाईफाई बोला था, वाईफाई की रेंज होती है डेट वन इज 100 to 300 feet, बट आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में। अब जैसे कंपनीज हैं, ठीक है, अब कोई कंपनी है, इफ़ दे आर सेटअप देयर वाईफाई, तो वाईफाई की रेंज तो बहुत छोटी होती है। नाउ दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द ऑल द मोबाइल्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी। सो द सिटी मीन्स मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, दैट वी आर कनेक्टिंग वन सिटी टू अनदर सिटी, वही तो मैन था, ठीक है। वाईमैक्स क्या होता है, अगर वाईफाई में तो क्या था, अगर मुझे 100 to 300 feet में किसी को अगर ऐड करना है तो हम वाईफाई पे जाते हैं। वाईफाई मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वाईमैक्स इज मैन, ठीक है, इट वर्क ऑन मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट एनी यूजर हुज, यहाँ पे डेट वो रेंज नहीं है, ठीक है, हुज रेंज इज 100 to 150 किलोमीटर। अगर मुझे 100 to 150 किलोमीटर की रेंज में इस टाइप से कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, सपोज फ्रॉम अलवर टू Jaipur, I want to create one network,
सो फॉर दिस विच नेटवर्क वी आर यूजिंग, वी आर वर्किंग विद WiMax, ठीक है, वहाँ पे हमें WiMax यूज़ करना पड़ेगा। एंड द रेंज ऑफ दिस WiMax इज़ 70 Mbps, जो वाईफाई की स्पीड होती है, डेट वन इज़ 54 Mbps। स्पीड भी इसमें ज़्यादा होती है, रेंज भी इसमें ज़्यादा होती है। थर्ड डिफरेंस इज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं वाईफाई की तरफ, ठीक है, यू विल चेक दिस वन व्हेन वी आर गोइंग देयर इन वाईफाई। चिल्ड्रन, इनके ना एक और नेम होते हैं, ठीक है, जैसे हम वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई का एक सेकंड नेम जो होता है, जैसे होता है ना आप लोगों का घर में यू आर हैविंग सम निक नेम, इन द सेम मैनर दीज दे आर हैविंग सम वन मोर नेम, ठीक है। अगर हम वाईफाई की बात करते हैं, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई का जो अदर नेम होता है, डेट वन इज IEEE 802.11। और अगर हम WiMax की बात करते हैं तो WiMax का नेम होता है IEEE 802.16, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड WiMax? वाईफाई वर्क ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, WiMax मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है, ठीक है। तो वाईफाई क्या हो गया, एक प्राइवेट नेटवर्क टाइप हो गया जहाँ लोकल अपन ने कनेक्ट किया। WiMax इज दैट मैन नेटवर्क, ठीक है, मीन्स मेट्रोपॉलिटन व्हेन वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। वाईफाई स्पीड होती है वो भी थोड़ी कम होती है, 54 Mbps होती है। एंड WiMax की मैक्सिमम जो स्पीड होती है, डेट वन इज 70 Mbps, ठीक है। WiMax होता है डेट वी आर यूजिंग ऑन द लोकेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा PCs को कनेक्ट करना होता है। वाईफाई की लिमिट भी 30 ही होती है, 30 यूज़र्स एट अ टाइम। WiMax की और जो स्पीड होती है, जो ये लिमिट होती है, वो भी ज़्यादा होती है। और वाईफाई का अगर हम निकनेम बोलें तो डेट वन इज़ IEEE 802.11। WiMax standard name is IEEE 802.16. Okay, so these are the things that we covered in this session, in this the types of internet connection. Children, in our next class we will learn about these switching techniques. स्विचिंग थोड़ा सा बता देती हूँ, दैट स्विचिंग मीन्स होता है दैट मूवमेंट इन वर्किंग ऑफ इंटरनेट। यू हैव सीन ना दैट हाउ वी कैन मूव और हाउ आवर पैकेट्स मूव और हाउ डेटा मूव बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो स्विचिंग मीन्स मूवमेंट, एंड व्हेन वी आर दिस डेटा इज मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, वी आर हैविंग 3 मेथड्स इनको मूव करवाने के। फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, सेकेंड one is massive switching, and third one is packet switching. These things, this topic we will cover in our next class. So in today's class, what we discuss about Wi-Fi and WiMax and 3 terms: access point, Wi-Fi and hotspot. Access point मेरे फ़ोन में ऑन होगा तब मैं अपने ISP से कनेक्ट करूँगी. हॉटस्पॉट मेरे फ़ोन में ऑन होगा तब आप मुझसे कनेक्ट होगे. एंड वाईफाई हॉटस्पॉट, वो वाईफाई जो होता है वो आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा, ओपन होगा, तभी आप मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड दिस वाईफाई फुल फॉर्म इज़ वायरलेस फिडेलिटी and WiMax full form is worldwide interoperability for microwave access. What is the difference between Wi-Fi and WiMax? Wi-Fi small network के लिए, LAN network के लिए. WiMax we are using for MAN network. Wi-Fi speed is 54 Mbps. WiMax speed is 70 Mbps. Wi-Fi range is 100 to 300 feet. WiMax range is 100 to 150 kilometers. ठीक है. So these are the differences between Wi-Fi and WiMax. Again I am telling this Wi-Fi and WiMax is an important topic. Next one is these things. समझ में आ गया? ठीक है. I hope you will understand all the things. If you found any problem in our next class when we will go through our next topic, that time I will clear it to you. You will tell this to me. And thank you so much children for listening me. Thank you class. Thank you so much.